Hello everyone, welcome to the Code Destination. This is the first video on this particular channel. So there might be two questions in your mind that who am I and what we are going to do on this channel. इस चीज़ के लिए हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ें जो स्क्रीन पे लिखी हुई है. So talking about me, my name is चिराग वैष्णव. So I am a video content creator for Geeks. मेरा खुद का एक चैनल भी है named चिराग वैष्णव. So you can check it out. And the second is DSA, that is Data Structures and Algorithms. So इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कोडिंग इंटरव्यू, ये कॉन्सेप्ट बहुत मस्ट है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है लाइक एरे, लिंक लिस्ट, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड लॉट मोर. सो वी विल मेक अ पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑन ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, solving different standard questions that are having high probability of coming in the interview. Okay, and the third thing that you can see on the screen is Newton School. So Newton School ने ही मुझे ये opportunity provide करी है कि that we can interact, we can discuss DSA, we can learn and grow together. So talking about Newton School is a platform that helps you to build career in your tech. Considering Newton School, it has a 6 months course which helps you to become a full stack development. Also Newton School is connected to a lot of companies, so it helps you to get placed after your complete course. And the best part about the Newton School is that you have to pay Newton School after you are getting placed. So if you are interested in such an amazing opportunity, do register for it as soon as possible. So this was the introduction part. Now let's move to the main purpose of this video. That is what we are going to start today. So we are going to start today the DP playlist. So in the DP playlist, the first question that we are going to see is coin change. Okay, so this will be the first question of our DP playlist. So in the DP playlist, we will do all the standard questions that we are having in dynamic programming regarding the interview preparation. So the first question that we are going to solve is coin change, or it is also known as coin sum infinite. So let me first give the brief of the question and then we will discuss the approach. So coin sum infinite में क्या है? Suppose I am given a target sum. Let's say the target sum that I am having is 4 and the coins that I am being provided with is 1, 2 and 3. So now what my aim is to do? My aim is to do कि मैं कितने coins से वो sum achieve कर सकता हूँ. Suppose मैंने एक के 4 सिक्के ले लिए, है ना? So वो sum achieve हो जाएगा. So मैं कितने coins लूँ कि वो sum achieve हो जाए. And the thing that we are being provided is कि coin हमारे पास है infinite, as the name signifies infinite. तो मतलब मैं एक के कितने भी सिक्के ले सकता हूँ, दो के कितने भी सिक्के ले सकता हूँ, तीन के कितने भी सिक्के ले सकता हूँ. So what are the options that I am having particularly? So let's see it in. तो coins में कितने ले सकता हूँ कि 1 1 1 1 plus 1 plus 1 plus 1, it will give me target sum 4. Yes, it is an option. अगर मैं 1 plus 1 plus 2 कर दूँ, क्या ये मेरे लिए ऑप्शन बनेगा? राइट, इट विल बी एन ऑप्शन. अगर मैं 2 plus 2 यूज़ करूँ, क्या ये मेरे लिए ऑप्शन रहेगा? यस, इट कैन बी ऑप्शन एज वेल. और अगर मैं चौथे के लिए जाता हूँ तो 3 plus 1 लेट्स से, तो ये भी मेरे लिए ऑप्शन बनेगा. तो टोटल दैट आई एम हैविंग इज 4 कॉम्बिनेशंस जिससे मैं ये टारगेट सम अचीव कर सकता हूँ. बट द वन ट्रिक इन द क्वेश्चन इज दैट कि ये तो मेरे कॉम्बिनेशंस है, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो देर आर टू थिंग्स कॉल्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो टोटल कॉम्बिनेशन आई एम हैविंग इज 4, बट अगर मैं परमुटेशन की बात करूँगा तो 1 1 1 1 इसका कोई परमुटेशन नहीं है. पर जब मैं 1 1 2 में आऊँगा तो परमुटेशन इसके क्या बनेंगे? 1 1 2, 1 2 1, 2 1 1. ओके, जब मैं 2 2 में आऊँगा, ओके, देयर इज़ नो इशू. बट जब मैं 3 1 में आऊँगा, 3 1 एंड 1 3. सो बाय मिस्टेक अगर आप कॉम्बिनेशन की जगह इसका परमुटेशन फाइंड कर लेते हो, सो योर आंसर विल बी 7. ओके, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन और इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, in my last few interview rounds I also did a mistake regarding this only. तो मैंने permutation निकाल दिए थे combination की जगह, and that had me a really great loss and I really regretted it, है ना. So I will advise you कि यार ये वाला जो concept है वो अच्छे से सुनना. Okay, so I hope you are able to understand the question. तो मुझे करना क्या है? I am given a target sum. उस target sum को अचीव करने के लिए मेरे पास coins हैं. उस कॉइन्स में से मैं कितने भी कॉइन ले सकता हूँ. कॉइन, द क्वांटिटी ऑफ द कॉइन इज इनफाइनाइट. मैं कितने भी कोई भी कॉइन ले सकता हूँ और मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताने कि जिसके सम से मैं वो टारगेट अचीव कर सकता हूँ. सो नाउ लेट्स जंप टू द लॉजिक पार्ट. ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस क्विकली. तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं, बट
understanding the thought process that we are having ना, that matters more. Okay, so यहाँ पे है, तो what I will do, I will follow the bottom up approach. तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच में आई यूज अ डीपी टेबल एंड अकॉर्डिंग टू दैट डीपी टेबल आई स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द लोअर एंड, और धीरे धीरे मैं ऊपर बिल्ड करता जाऊंगा. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बॉटम अप अप्रोच, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल फ्रॉम वेरी स्क्रैच. तो यार चलो शुरू करते हैं. तो नाउ लेट्स डिस्कस द डीपी टेबल दैट वी आर हैविंग. तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यहाँ पे 4 द कॉइन्स दैट आई एम हैविंग. जो मेरे पास कॉइन्स है वो है मेरे पास 1, 2 एंड 3. तो मैं एक डीपी टेबल यहाँ पे बनाऊंगा. तो डीपी टेबल, यार नाम यहाँ इसका डीपी देते हैं क्योंकि देर इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हम कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन अस. तो यहाँ पे मैंने एक डीपी टेबल बना लिया. नाउ व्हाट इज़ द मेन गेम. तो एक डीपी का हर एक इंडेक्स क्या रिजेंबल करता है, डीपी का हर एक इंडेक्स रिजेंबल करता है कि उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो 4 के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, विल बी हेयर. 3 के लिए कितने बनेंगे, विल बी हेयर, एंड सो ऑन. तो 4 के लिए हमने देखा था कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 एंड 1 3. तो देयर वर 4 कॉम्बिनेशंस. ऑल्सो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में मैंने आपको बोला है कि बी क्लियर अबाउट इट. सो एज वी आर सॉल्विंग थ्रू बॉटम अप अप्रोच, तो बॉटम अप हम क्या जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं. सो नीचे से ऊपर हम यूं इटरेट करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो थिंग. तो जीरो इंडेक्स पे व्हाट वी आर हैविंग, जीरो इंडेक्स पे मेरे पास क्या है कि अगर मेरा टारगेट सम ही जीरो है तो मैं कुछ ना दूँ, मेरे पास एक ऑप्शन तो है ही. तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि कुछ भी नहीं दिया, लेट्स रिजेंबल इट बाय डॉट. ठीक है, अब मैं 1 पे आया. तो 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो 1 के लिए व्हाट आई एम हैविंग कि अगर मैं एक कॉइन ले लूँ, तो अगर मैंने एक कॉइन निकाल दिया इसमें से, तो मेरे पास क्या 0 बचे, और 0 देने का मेरे पास 1 है. तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 0 और 1, मेरे पास ये एक ऑप्शन बन जाएगा. सिमिलरली 2 के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो आई एम हैविंग 1 थिंग. ओके, सो इट विल बी डॉट 1 1. सो इट विल बी अगेन हैविंग 1 थिंग, है ना. सो जब मैं 3 के लिए देखूँ, तो 3 - 1 2. तो मैं यहाँ पे देखूँगा, तो यहाँ पे कितने पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है. तो यहाँ पे मतलब मैं अगर एक और ऐड करूँगा तो मेरा 3 बन जाएगा. तो 1 1 1. सो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा, डॉट 1 1 1 1. ओके, नाउ अब मैं सेकंड कॉइन के लिए इटरेट करता हूँ. तो सेकंड कॉइन के लिए जब मैं इटरेट करूँगा, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. क्योंकि 1 अगर मेरे पास एक ही है, मेरा टारगेट सम 1 है, तो मैं 2 से कैसे उसको कर सकता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं 2 पे जाऊँगा तो मैं क्या, लेट्स से ये 1 के थे, अब हम बनाएंगे 2 के. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से बनाएंगे 2 के. तो अगर मैं 2 देता हूँ, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0. येस, आई एम हैविंग 1 देयर, मेरे पास पहले से वहाँ पे 1 ऑप्शन पड़ा है. तो डॉट 2 विल बी माई सेकेंड थिंग दैट आई कैन शेयर, राइट. तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 से 2. लेट मी जस्ट इरेज इट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2. अब मैं 3 पे आया, तो 3 से मैं क्या बना सकता हूँ, 3 - 2 इज ओके. सब 3 पे आता है, तो 3 से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो 2. सो मेरे पास क्या ऑप्शन बनेंगे, 1 और 2. ओके, 1 2 3 बना रहे, राइट. अब मैं 4 पे आता हूँ, तो 4 - 2 दैट इज 2. अच्छा, 2 यहाँ पे पड़ा है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास क्या ऑप्शन बन जाएंगे कि 1 1 और 2 और 2 और 2. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, +2, 1 + 2 दैट इज 3 विल बी अपडेटेड हेयर. तो अब आखिरी 3 राउंड चलाते हैं. तो 3 वाले इटरेशन में आई होप आपको फाइनली समझ आ जाएगा. जैसे यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें बन रही है, द थिंग्स आर बिल्डिंग. सो आई होप कि वो समझ आ रही होगी. सो 3 के लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा, मैं 2 वाला हटा दे रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, अब 3 के लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा. क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 2 है मेरे पास, अगर मेरा टारगेट सम 2 है, तो मैं 3 के कॉन्सेप्ट को कैसे अचीव कर सकता हूँ. इट इज़ काइंड ऑफ, आई होप यू कैन इमेजिन दिस. तो मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ. तो यहाँ से मैं 3 गया. सो अगर मैं 3 पूरा दे देता हूँ, तो इट विल बी 0. तो हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि यार केवल अगर मैं 3 लेके 3 अचीव कर लूँ, सो 1 विल बी अपडेटेड टू 2. अब मैं यहाँ पे 4 पे आ गया, तो 4 - 1 इज दिस. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट 1 and 3. तो यहाँ मेरा 4 अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा लूप खत्म हो गया है. तो 4 कॉम्बिनेशन मेरे बन रहे हैं, द कॉम्बिनेशन आर दिस. सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. सो अब इसका जल्दी से हम कोड कर लेते हैं. आई होप कोड के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएगी. सो
लेट मी जस्ट मूव टू द कोड। ओके, तो हम कोड इसका कैसे करने वाले हैं, तो कोड में हम क्या रहेगा, सबसे पहले हमारे पास एक कॉइन डीपी ले लेंगे हम, तो इंट n, तो n में हम ले लेंगे उस कॉइन डीपी का साइज, तो इंट कॉइन ऑफ n। तो यहाँ पे मेरा कॉइन हो जाएगा, तो मैं अब इसको इनपुट ले लेता हूँ, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस सी इन ऑफ कॉइन ऑफ i। सो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि कॉइन के एरे को इटरेट कर लिया, और कॉइन का साइज है मेरा m। तो अब मैं ले लेता हूँ एक टारगेट, इन टारगेट एंड सी इन टारगेट। सो टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट सम जो रहने वाला है। तो इनपुट में मैंने अभी सारी चीज़ें ले ली हैं, तो अब मेरा लॉजिक बनाना है कि मुझे अब मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले मुझे एक डीपी बनानी है। तो अगर मेरा डीपी 4 है तो मेरे डीपी का साइज क्या होगा, 4 + 1। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4, है ना। तो इंट डीपी ऑफ टारगेट +1 मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और मीन सेट डीपी 0 साइज ऑफ डीपी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पूरी डीपी को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और मैंने कहा था कि फर्स्ट इंडेक्स को हम डीपी ऑफ 1 से इनिशियलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला, अगर मेरे पास टारगेट ही नहीं है तो मैं कोई कॉइन दूँ ही ना, तो मेरे पास एक चॉइस तो बन ही रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, यहाँ पे गेम है, यहाँ पे मैं करूँगा i लेस देन n। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं हर कॉइन के लिए देख रहा था, पहले 1 के लिए देखा, फिर 2 के लिए देखा, फिर 3 के लिए देखा। तो आउटर लूप जो चलेगा वो मेरा कॉइन के बेसिस पे चलेगा, i प्लस प्लस एंड फॉर इंट j इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉइन ऑफ i रहेगा, i लेस देन व्हाट विल बी टारगेट +1, सॉरी टारगेट +1 j प्लस प्लस। ओके, सो अब मैंने अंदर और लूप कैसे चलाया, तो मैंने आपको बोला था कि बार बार हम, अगर मेरा कॉइन 2 था तो मैं 2 से शुरू कर रहा था, 3 था तो मैं 3 से शुरू कर रहा था। क्यों, क्योंकि उससे छोटे वाले कॉइन तो उससे मैं कर ही नहीं सकता ना, कि अगर मेरे पास टारगेट 2 है और मेरा कॉइन 3 है तो मैं कैसे अचीव करूँगा, इट इज़ अनअचीवेबल। क्यों, क्योंकि मैं उस कॉइन को थोड़ा तोड़ सकता हूँ, ऑब्वियसली येस। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, उस कॉइन से शुरू करूँगा और उस टारगेट तक जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है कि डी पी ऑफ जे प्लस इज इक्वल्स टू डी पी ऑफ j माइनस कॉइन ऑफ i। ओके, तो अब जैसे मैं क्या कर रहा था वहाँ पे कि अगर मेरा 2 था तो मैं क्या कर रहा था कि सबको 2 से सब्ट्रैक्ट करके देख रहा था कि क्या उस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी है। अगर वैल्यू पड़ी है तो मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा था, वो मैंने आपको समझाया है अच्छे से। सो इन दिस वे आवर लूप विल रन एंड एट द एंड सी आउट डी पी ऑफ n। तो डी पी ऑफ n में मेरा जो रिजल्ट होगा वो स्टोर होगा। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड ट्राई टू रन दिस। अब देखते हैं फटफट इसमें कोई एरर तो नहीं है, होपफुली एरर नहीं आने चाहिए। ओके, तो अब इनपुट देना है, तो इनपुट मैंने साइज लेट से 3 दे देता हूँ, और 1 2 3 2 एंड 3 एंड टारगेट 4। ओके, अब ये मैंने इनपुट दे दिया इसको, नाउ लेट्स रन इट। सो हियर वी कैन सी द आउटपुट इज 4, जो हमने डिजायर किया था वही था। सो कोड इज रनिंग परफेक्टली फाइन। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like the channel, subscribe to this channel, and if you're having any doubt regarding whatever I have explained, comment karo, I will for sure answer it. Also, if you are interested in the Newton School project, go enroll in it as soon as possible. It will be for sure beneficial to you. तो DP की जो सीरीज़ है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। So till then, टाटा बाय बाय।